One online class 9, subject SST, chapter 2, part 3, the February Revolution in Petrograd. Petrograd में फरवरी क्रांति. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. The workers' quarter and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the winter places, and official buildings, including the places where the Duma met. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Thatcher's desire to dissolve the Duma. सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राड की हालात बहुत ख़राब थी. ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी. मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे. बाएं किनारे और फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी. जिस महल में ड्यूपा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था. फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई. उस साल ठंड में भी कुछ ज़्यादा पड़ने लगी थी. भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी. संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकारें बची रहें, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे. On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This come to be called the International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they come back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई. अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों को समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया. बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी. इस दिनों के बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया था. आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी. इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन का सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी. जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों के मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया. शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को यह फिर से इकट्ठा होने लगे. सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया. On Sunday 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measures. Demonstrators returned in force to the street of the left bank on the 26th. On the 27th, in the police headquarters were ransacked. The street thronged with people raising slogans about bread wages, bitter hour, and democracy. The government tried to control the situations and called out the cavalry
Once again, however, the cavalry refused to fire on the demonstrators, and officer was shot at the barracks of a regiment, and three other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the पेट्रोगार्ड सोवियत। अब रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 जनवरी को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों में हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोगों ने सड़कों पर जाम हो गए। सरकार ने स्थिति में नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने में इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैराक में अपनी एक ही अफसर पर गोली चला दी थी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस समय शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोगार्ड सोवियत का जन्म हुआ। The very next day, a delegations went to see the Russian military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated. On 2 March, Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future world we decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917. अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी और कि वह राजगद्दी छोड़ दे। इन कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दिया जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोगार्ड की जनता के हाथों में था। आफ्टर फरवरी के बाद आर्मी ऑफिशियल लैंडोवेयर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेयर इन्फ्लुएंशियल in the provisional government, but the liberal as well as socialist among them worked towards an elected government. Restrictions on public meeting and associations were removed. Soviet like the Petrograd Soviet were set up everywhere. Thought no common system of election was followed. अंतिम सरकार के सैनिक अधिकारी भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने में लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगार्ड सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। इन अप्रैल 1917 द बेल्शेविको leaders Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He and the Bolsheviki had opposed the war since 1914. Now he felt it was time for Soviet to take over power. He declared that the war we brought to a close, land we transferred to the
peasant the banks be nationalized. These three demands were Lenin April days. He also argued that the Bolshevik Party remained itself the Communist Party to indicate its new radical aims. Most others in the Bolshevik Party were entirely surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported, but the development of the subsequent month changes their attitude. अंतरिम अप्रैल 1917 में बल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन ने अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों ने अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान नहीं हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकारों को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच को बदल दिया। थ्रूआउट द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। फैक्ट्री कम्युनिटीज were formed which began questioning the way industrialization ran their factories. Trade union grew in number. Soldiers committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviet as the provisional government its power reduced and Bolshevik influence grew. It decided to take stern measures against the spreading discount. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. गर्मियों के मजदूरों आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बल्शेविकों ने प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए जो सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियों चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकने और मजदूरों को नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants snatched land between July and September 1917. अब गांवों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों की प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर और कब्जा कर लिया था।
द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 की क्रांति। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolsheviko supporters in the army, Soviet and factories were brought together. जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दिया और सेना और फैक्ट्री सोवियतों के मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। ऑन 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की ने नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात पर खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। The uprising began on 24 October, sanctioning Trovel. Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to the government seized the buildings of two Bolsheviko newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph officers and protect the winter place. In a swift response, the military revolutionary committee ordered its supporters to seize government officers and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora sailed the winter place. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. At a meeting of the All-Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow, but by December the Bolsheviko controlled the Moscow Petrograd area. 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। तड़के की सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ बस दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने पर विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उस दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई, खास तौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविकों
का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। थैंक यू।